हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। आज हम लोग 15 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और इससे पहले भी मार्च का डे बाय डे करंट अफेयर्स अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और जनवरी और फरवरी मंथ के भी करंट अफेयर्स अपलोडेड हैं, सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट करंट अफेयर्स के अपडेटेड वीडियोस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक पहुंच पाए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष। ओके सो तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ चेयर्ड द हाई लेवल कमेटी ऑन द डिस्कस्ड वन नेशन वन इलेक्शन? ए रामनाथ कोविंद, बी अमित शाह, सी गुलाम नबी आज़ाद और डी एन.के. सिंह। The right answer will be option A, Ramnath Kovind. Ramnath Kovind has chaired the high-level committee on the discussed One Nation One election. Kovind has chaired the high-level committee on the discussed One Nation One election. Now moving into our next question. Question number 2. Who won Ranji Trophy Final 2024? A. Gujarat, B. Saurashtra, C. Vidarbha और D. मुंबई। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी का फाइनल 2024 का समाप्त हुआ, तो बताना है कि इसमें जो रणजी ट्रॉफी है ये कौन जीता। तो ये जो जीता गया है ये मुंबई के द्वारा जीता गया है रणजी ट्रॉफी। सो मुंबई वुन रणजी ट्रॉफी फाइनल 2024 और किसको हराया है? तो विदर्भा को। मुंबई विन्स रणजी ट्रॉफी 2024 आफ्टर बीटिंग विदर्भा। Now moving into our next question, question number number 3rd. Where has PM Modi inaugurated the country's first auto-in-plant railway siding? A. गुजरात, B. उत्तर प्रदेश, C. महाराष्ट्र और D. राजस्थान। Where has PM Modi inaugurated the country's first auto-in-plant railway siding? The right answer will be option A. Gujarat. PM Modi inaugurated the country's first auto-in-plant railway siding in Gujarat. Now moving into our next question, question number 4. What is the new name approved for the Ahmednagar by the Maharashtra cabinet? A. Ahilya Nagar, B. Ashoka Nagar, C. Amrita Nagar or D. Ahir Nagar. What is the new name approved for the Ahmednagar by the Maharashtra cabinet? The right answer will be option A. Ahilya Nagar. सो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर था उसका नाम चेंज करके अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर। द न्यू नेम अप्रूव फॉर द अहमदनगर बाय द महाराष्ट्र कैबिनेट इज अहिल्या नगर। नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इन 2024? ए फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल AI for consumers, ethical marketing strategies, transparent product labeling or D. sustainable consumption practices. The right answer will be option A, fair and responsible AI for consumers. The theme for World Consumer Rights Day in 2024 is fair and responsible AI for consumers.
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022? A 134th, B 132nd, C 133rd or D 136th? What position has India got in the United Nations Development Index, United Nations Human Development Index 2022? The right answer will be option A 134th. 134th rank India got in the United Nations Human Development Index 2022. Now next question की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, who has been appointed as the new election commissioner of India? Who has been appointed as the new election commissioner of India? A. Sukhbir Singh Sandhu, B. Gyanesh Kumar, C. Adhir Ranjan Chaudhary और D both A and B? इसका राइट आंसर क्या होगा? So the correct answer for question number 7 is A. Sukhbir Singh Sandhu and B. Gyanesh Kumar. So the right answer will be option D, both A and B. Sukhbir Singh Sandhu and Gyanesh Kumar both has been appointed as the new election commissioner of India. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो गाइस काफ़ी इन्वेस्टिगेट करके हर एक टॉपिक से करंट अफेयर्स का एकदम इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द UNDP जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022? A 108th, B 107th, C 106th or D 101st? The right answer will be option A 108th. 108th position has India got in the UNDP Gender Inequality Index 2022 और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वार डायरी? ए विशाल पांडे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वार डायरी? ए विशाल पांडे, बी लक्ष्मी मुरुदेश्वरी, सी गोटाबया राजपक्ष और डी PS श्रीधरन पिल्ले। द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 इज ए विशाल पांडे। विशाल पांडे इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वार डायरी। ये बुक देख सकते हैं, बुक का फ्रंट पेज ये यही सेम ऐसा ही बुक है, लिखा हुआ है इजराइल वार डायरी और नीचे में उन पोएट जो ऑथर हैं उनका नाम लिखा हुआ है विशाल पांडे। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए विशाल पांडे। विशाल पांडे इज द ऑथर ऑफ द बुक इजराइल वार डायरी। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which country's first private sector rocket named Kairos was destroyed during its launch? A. China, B. Russia, C. Japan, D. United States America. The right answer will be option C.
जापान. Japan's Space One Kairos rocket explodes on inaugural flight. Japan country's first private sector rocket named Kairos was destroyed during its launch. Okay. सो आज का करंट अफेयर का जो ये सेट था ये यहीं पे समाप्त हुआ. और ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. थैंक यू. प्लीज़ do like and subscribe to get daily updated current affairs videos.